Hello, dear friends. A warm welcome to everyone. Thanks for being a part of the International Fab Talks, and good evening, India. Dear friends, today I'd like to invite on stage on this beautiful platform, the International Fab Talks, Dr. Kirit Kumar from Baroda, who is a special person who wants to bring a beautiful change in the youth of India. Hello, sir, and welcome to the session. Thank you. Thank you very much. Dear sir, I'd like to go ahead and introduce you in an official way before we start the interview, with your permission. Well, obviously, you can. You can. Dear friends, our celebrity today is an academician. He is Mr. Kirit Kumar Bhatt, an academician who has that aim and zeal to bring a transformation in all the students. Every student has to contribute his or her best. And like every academician across the world, he wants to see his students rise above him. He has been in the field for many years. He wants the other students to come out and shine and carry the baton of education, peace, brotherhood, and love and spirit across the world. Dear sir, I will go ahead and I will share your profile in a very official way now, with your permission. Thank you very much. You can. Dear friends, it's our honor and a privilege to share the profile of our special celebrity, Dr. Kirit Kumar Bhatt, the professor and head of the Electronic and Engineering Department, and as well as Electronic and Communications Department. He's the director, Office of the International Relations, Gandhinagar University, Gandhinagar, Gujarat, India. Sir has also been contributing his services and worked as a professor and principal at NSIT, Jatalpur, Ahmedabad, Gujarat, India. And sir has now so many feathers in his cap, so much credit to him, and so many achievements. Let's read a few of them and let's share a few of them with you. He has completed his bachelor's in engineering, master's in engineering, and has also completed his PhD. And he is a proud person who is guiding now the others. He's a mentor to the other young students who want to complete their PhD and want to go on that beautiful path to create a beautiful world, not only for India, but for everyone across the globe. And dear friends, he's completed his bachelor's and master's and PhD from the MS University of Baroda, specializing in electronics engineering. His area of research is embedded systems, VLSI design, and especially low power designs. And guess how many years of experience? You will be really surprised. He has a total of 25 plus years of experience as an academician and has worked in various capacities. He's an author as well. His book, Sand to Solar Module, is being published and is being celebrated across India and the world. He has guided 6 research scholars, not 1, not 2, 6 research scholars, and 3 of them have already been awarded their PhDs, and they are very satisfied with sir's mentorship and guidance. Dear friends, sir has also published many technical papers, about 60 technical papers in national and international journals. And that's really a wonderful thing, national and international journals and conferences as well. He has received several awards and recognition from across the globe. Yet he is very humble and polite, very approachable. And dear friends, to add to that, various organizations and institutions have always invited him, awarded him, congratulated him for all that he has been doing in the field of engineering and, of course, education. He is associated with many national and international agencies, organizations, institutions, and universities as a resource person. Every now and then he's been called to give lectures or to share his expertise on the various international and national platforms. He has delivered several talks on various platforms globally. And dear friends, he's well recognized as what? As a great speaker. And let's get to know about our special celebrity today, that is Kirit Kumar Bhatt, Dr. Kirit Kumar Bhatt. Thank you, sir, for accepting the invite. Thank you. Thank you very much for such a wonderful introduction. I'm really feeling so happy as you introduce me in a way as it is a celebrity. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. Definitely you are a celebrity. Thank you so much for being a part of the International Fab Talks. You have achieved so much. This tells us that you're a very humble person, a down-to-earth person. Maine kya kiya, kuch bhi nahi. Yes, but I'm just a small drop. But you are that beautiful pearl
Chota sa moti. Yes, sir. Resign behind this thought is that I am the son of soil. My father is farmer, so I belongs to farmer family. So and still from Monday to Saturday I'm professor, or otherwise I am farmer also. Even I am doing farming too. So that keeps me connected with the ground. Perfect, sir. तो आप वो छोटा सा मोती है. You know, you are a pearl in the ocean. That's really nice. Thank you. Dear sir, we begin with the first round of the interview. As you said, you are the son of the soil. Your dad was a farmer and you love farming. Apart from being an academician, you're the real son of India who is connected to the land. Bhumi ke saath aapka gehra rishta hai, sir. That is wonderful. Dear friends, we go on with the first round of the interview called as the main round of the interview. Yeah. Dear sir, how would you define yourself? Who is the real Dr. Kirit Kumar Bhatt? In fact, being Dr. Kirit Kumar Bhatt, first of all, I am a human being. May it be a professor, director, or principal, or vice chancellor, or maybe peon. Before that, we all are human beings, and that contents, that ingredients that works a lot in bringing the peace across the world. So I personally feel that I am human being first before all these things. So I might define myself as to be a kind and humble human being. Very true, sir. I've connected with you. I've bonded with you over the past few days, and you're very polite, dignified, and you respect the other person. Thank you. कोई ऐसा ego नहीं है. There is no ego issues. That yes, I am the professor, I am the head of the department, I am the director. You are not like that. You're very down to earth, very polite. You make the other person feel good in your presence. Thank you, Mama. That's very nice. Thank you very much, sir. Dear sir, you are an inspiration to many of the youngsters out there, especially in the engineering field, in the academic sector. Yeah. Your subordinates, to me, you're a wonderful inspiration. But today we'd love to know, who is your inspiration? Who inspired you to become who you are today? I'm to be enough frank. As I told you, I belong to a village, and I'm so lucky person that I got great teachers in my life, and I believe that my teachers were the world's great teachers, and those teachers take me to this level. From my school was assembling under a neem tree. I was belong to that kind of village. We have never gone to international schools or some. And I studied throughout my life in a vernacular medium, but my teachers were great, and my teachers were the source of inspiration at every level, even at the school, even at the college, even at the master level, even my guide at the PhD level. They were really gems. I am so lucky I got a gems on the path of my life. And in addition to that, Sardar Vallabhbhai Patel, I believe in his strength and his character too much. So these are my source of inspiration. They always tell me to contribute more and more for the society. Whatever I can do, I should do. That is what. Thank you, sir, for sharing. That's really very nice. You shared that you would sit under the neem tree. Yeah. And sit under a tree and study and take classes and study like that. That's really wonderful. From that level to this level, becoming the director, the principal is really a great, experience to come so far. I will like to share something more also. Being a farmer, on one side, I am taking work from the completely illiterate people. I'm dealing with the laborers and all that. And on the next day, I'm going for conducting the PhD exams or exam of the PhD scholars, or publishing my paper at international conferences, or maybe in different countries. I'm traveling for those purposes. So the spectrum of experience is very wide. Because one side I'm dealing with the cream of the nation people, highly intellectual people, and on another side completely illiterate people. So that really made me how to deal with the people and how to handle those people. Yes, sir. Thank you very much for sharing. Balancing, giving respect to everybody. Everyone. Yes. Even they may be the cream layer, they may be just the son of the soil. No, because
Because we are human being first. That is what I told you. First, we have to deal with that concept that all are human being first. Then afterwards, the rest everything comes. Perfect, sir. Perfect. Very true. Dear sir, as an academician for more than 25 plus years, you might have been through a lot of challenges. How did you manage your challenges till date? First of all, it is very difficult to get me angry in a very short span of time. I try to remain it by practice. I am doing that to remain calm and cool for a longer period of time. And I believe that whatever work you do, wherever you go, whatever may be your portfolio, challenges will be there. And everyone on this earth must be facing those things. So I do too. But my thought process should focus on outcome of the particular task. So once you focus on outcome, then whatever challenge come, you will slowly and gradually you will find out the ways to come out of it. So this is what my way of thinking. And apart from that, I usually stay connected with my seniors, stay connected with my fellow colleagues, and even sometimes I am taking guidance from my students also. And I don't mind in asking my students to, if I something, say engineering is such a vast field, one cannot be 100%. So if somebody has a expertise in one direction, someone has expertise in another direction, so we can have integrated efforts also. So that's how we manage our challenges. And being engineer, we know very well how to handle the challenges. Very true, sir. I really like this. You said seniors, peers, and as well as students. You're open to learning from everyone, teaching and learning. It's an integrated effort, as you said. We have to keep it a part of life. Otherwise, we will be out of the track. Every now and then, technology is getting changing. Engineering field is so vast, and every day there will be changing in the technology. But we have, if we want to have onto that track, then we have to keep the pace with those changing technologies. So very true, very true. So engineers are all about creating solutions, right? Yeah. They are solution providers. Yes, sir. Dear sir, would you like to share any incident about your childhood? How were you as a little kid? Were you the naughty one? I was a very mischievous boy, and मेरी मदर जो है हमेशा मुझे मारती रहती थी. वो उसका कोई गलत काम करेगा, कुछ मस्ती वस्ती करेगा तो मार मुझे ही खानी है. वो सबको पता था कि इसी ने किया होगा, और सारे दूसरे फैमिली के बच्चे जो है वो ये बोल भी देते थे कि उसने किया, और सब मान भी लेते थे. I was a so notorious boy. I would like to quote one example. Me and my cousin, they are of almost the same age. Once my father bought a fantastic t-shirt to both of us when I was a child, and that t-shirt I love the most, and that my cousin also liked that t-shirt, which was given to me. And on first floor, t-shirt was on the first floor. We both took a bath in adjacent bathroom together, and as a child we went for the clothes on upstairs. He took first my t-shirt and he ran away. I jumped from first floor to on that my cousin, but by that time he has passed and my joint was displaced at the childhood. Before giving me treatment, before carrying me for medical treatment, I was first punished by my parents. इतना ऊपर से कोई कूदता है क्या? So we were so notorious people at the time. आम चुरा के खाओ, पत्थर मार के आम तोड़ो, वो सब तो that was regular affairs. As a child, I was really a very mischievous boy. And
no one prefer to carry me when parents are going outside for some occasion, some social function. They will not prefer to carry me. But at that time, the people who are at home, they were complaining, we do not want to keep him here. Either you take him. So it was like that. But yes, I was also known for when there is a intellectual things are to be done, or when there is some systematic task, writing something, writing letters or countings, and dealing with the some merchant, cotton merchant and all, that I was sent from the family. So that was the another side of it. Yes, sir. Thank you for sharing all of that. And you know what comes to my mind? What can I visualize now? Both Yeah. of you running upstairs and he Yeah. taking the No, t-shirt, running no. away, and you jumping from that height. Yeah. So that was. So what was the punishment that you got from your parents when they They found slapped like, me 2-3, oh, and then they take me to doctor. कि तुम यही कांड करते रहते हो और हम लोगों को बिजी रखते हो ऐसी चीजों में. कितना दिन लगा सर आपको फिर ठीक होने में फिर? नहीं, वो दैट वाज ओनली वो पेन. डिसजॉइंट हो गया था, ब्रेक नहीं हुआ था, नो क्रैक नथिंग. वो डिस्प्लेस हो गया था जॉइंट थोड़ा. तो दैट Vaidraj has finished within 15 days or so. And at that time, there were some Ayurvedic medicine, I don't know, but it was done. There is no problem till today. Thankfully. Yes, sir. You were very brave to jump like that. No, it's really unimaginable कि भाई ऐसे It कैसे कर is सकते हैं? it is one of the incident. I cannot share everything, otherwise you will hit me. There are so many things. My parents were really, but yes, they have enough faith in me that this man will do something. I am the first graduate from my village. I break the custom of the village that after study nobody is getting the job, so you should also start doing agriculture as a farmer. I was told like that by my uncle. But then afterwards, I took my career very seriously when I was in 8th standard, and I became a first graduate from my village. Then I got a job also. Then I again further proceed with the career. After marriage, I completed my ME, and after children, I completed my PhD. So excellent. that how it. Beautiful journey, sir. Very nice. Yeah. And as you said, you're the first graduate of your village. Yeah. Maybe know your village, sir. What's the name of your village? It is Atali. It is Atali. From Baroda, there is a Karjan is the tehsil name of the taluka, and it falls in that taluka, Atali village. Yes, dear. And congratulations for being the first graduate. You have led the way for the others. Thank you. Thank you. Yeah, then afterwards, many parents came to me for guidance and all that. And then afterwards, many children have studied fantastically. They have made their career. They come out from the village. They come out from that particular cover of farming and all that, which in the mindset of the parents of the village. Yes, education is only a tool through which we can grow, and not all the family members should get engaged in the farming. Those who have capacity, we should give them proper environment, proper platform, and let them fly. World is very big. It's full of opportunities. We prove that. My brother is immediately then afterwards, he also has been electrical engineer, and now he is in MNC. Yes, sir. That's really very nice. Thank you for sharing all of that. I have a question. Yeah. What about your cousin? He's farmer now. He's farmer, and he is now taking care of my land also. He was not inclined to study much, but he is a good boy at that time. So he didn't get any scolding from anybody? No, because they are the good children. I am only a
मिसीवियस चिल्ड्रन, सो मुझे मार भी पड़ेगी, वो मुझे डांटेंगे भी, मुझे भगाएंगे भी, कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं उन चीजों को माइंड भी नहीं करता था। मुझे पता था कि व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वाज डूइंग। Very nice. Thank you for sharing all of that. That was really very nice. I या really enjoyed all that beautiful journey थैंक which यू, you shared. थैंक यू। Yes, sir. Dear sir, any book you'd like to suggest that, yes, if you read this book, it would really be beneficial to you? प्रमोद बत्रा, author Pramod Batra, Management Fundamentals. That has actually molded me very uh, professionally. He molded me. See, when I come from vernacular medium, when I get into the graduation and all, engineering graduation, then I represent myself as a professional person, as an electronics engineer. But that touch in our days, institution were also not so professional. Uh, yes, academics was good, but making a person, a multidimensional person, I am, see, if I am engineer. Uh, in early days, engineer was given a good cabin and he has to do only engineering work. Engineering work meaning is to say, on paper he has to take care of the complete circuit, voltage, current, frequency, and all that. Nowadays the time is different. In early days, juicer, mixer, and grinder, 3 gadgets were different, and we have to have those 3 gadgets. Now everything is within one integrated device. So engineer cannot sit idly and doing engineering work. He has to make a documentation. He must be a manager. He must go for representation, for giving presentation, for marketing, for selling of the engineering softwares and whatnot. So that part was a bit lacking in we people. But that Pramod Batra's book has molded me. It has trained me. What is the role of as a manager? What I should take care of the peer team? How to control the emotions? How to take care of others when they are in trouble? How to move ahead with the team? So there are so many things I learned from those books. Yes. Pramod Batra. Yes. Thank you very much for sharing all of that. Thank you so much. Dear sir, you are in the academic field for more than 25 plus years. 25 साल से ऊपर. आप कभी अपने लिए थोड़े से छुट्टी निकाल के कहीं वेकेशन पे गए हैं सर? हाँ, कहीं बाहर गए हूँ और बहुत जगह पे गया हूँ, फैमिली लेके सबसे बढ़िया जगह कौन सी थी? मुझे तो उत्तराखंड ज्यादा अच्छा लगा, और वैष्णो देवी जाना, हरिद्वार में वो गंगा के किनारे बस बैठे रहो विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग। फिर बद्रीनाथ जब मैं गया था, तो जब भी जाता हूँ या जब भी गया था, तब भी मैं कई घंटे तक ऐसे ही साइड में कहीं पे बैठा रहा। It has different vibration, I feel that, and especially on the bank of गंगा, हमें ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि अपना शरीर अपने आप शांत होता है। There are some vibrations. I don't know anything. I don't say anything about any supernatural power and whatnot. I don't know. This is my feeling, expression of my feelings, what I have feel. So अपने आप हम शांत होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। Because when we enter into the senior post, तो एक स्ट्रेस तो आ ही जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, देन मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आउटकम देखना पड़ता है। मैं ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट और बच्चों की एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, क्योंकि किसी को जॉब देना और उसकी फैमिली को सेट करना सबसे बड़ा काम आज के ज़माने में है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। सो वो सारी चीज़ों में जब ऐसी मुझे सबसे ज़्यादा जंगल एक्सप्लोरेशन भी बहुत अच्छा लगता है। इन नियर बाई बड़ौदा देयर आर 2 फॉरेस्ट रेंज। I usually used to go there and stay there for 2-3 days and exploring the jungle. Just पहाड़ चढ़ो उतरो, ट्रैकिंग में जाओ, something like. जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच। वो गंगा के किनारा बैठना,
शांत हो जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पे है. Yes, दैट्स yes, रियली अ ग्रेट फीलिंग. आई कुड yeah. जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ दैट. आप शेयर कर रहे थे तो मैं बस ऐसे आई वाज इमेजिनिंग कि आप बैठे हैं वहां पर. It's true, madam. It's really true. I have experienced it many times, many times. Yes. And my wife is a fashion designer, so she also loves to explore natural beauty. तो हम लोग कई बार निकल जाते हैं. ठीक ठीक. So Uttarakhand is your favorite destination. Yeah. Yes sir. Dear sir, ऐसी कौन सी गुण आप में है कि आपको खुद पसंद है? दिस इज मी किरीट कुमार एंड आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मुझ में ये अच्छा गुण है. मैंने पहचान लिया, दूसरे भी पहचान लिए, और मैं अपने आप को अच्छा, आई फील गुड दैट दिस इज माई इनर कोर क्वालिटी. व्हाट इज दैट? There are two, three things, madam. I used to give opportunity to my enemies also to continue a relationship with me. I used to give opportunities. And at the end, when I come to conclusion, reversal is not possible, then actually reversal is not possible throughout the life. Actually, it is not possible from my side. Whatever you do, whatever. सोना बरसे तो भी नहीं. तो जब हमने लॉक लगाया तो वो लॉक होता है. अब इसको गुण कहो या अवगुण कहो, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटीज देता हूँ. और मैं किसी को दुश्मन मानता ही नहीं इस धरती पे. कोई गलत किसी का इमोशंस गलत हो ही नहीं, गलत है ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ. लेकिन द एथिकल प्रैक्टिसेस विच इज सोशली एक्सेप्टेड एथिकल प्रैक्टिसेस, उसमें बिलीव करना चाहिए. हमारी कुछ भी फीलिंग है तो हम ये नहीं कर सकते विच इज सोशली नॉट एक्सेप्टेबल. वी शुड बिलीव in sustainability of the society also. We should respect other rights. We should respect other peace of mind. We should respect others' livings. So this is what is my understanding. और इससे मुझे फायदा भी बहुत हुआ है. मेरा कोई लोग जो मुझे दुश्मन समझते हैं, बाद में ऐसा हो गया कि वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि हम सोच नहीं सकते. मैं खुद परेशान हूँ कि उसको इतना अच्छा मेरे साथ कैसे वो ट्यूनिंग हो गया. But that is because how we treat the people. Yes, yes. मुझे ये And बहुत अच्छा लगा. I'm good leader also. Team building मेरा एक खुद पैशन भी रहा है और मैंने बहुत बार प्रूव भी किया है. I am good in team building. Yes, very nice. I like this. अगर सोना बरसे तो भी पीछे हटके नहीं देखेंगे. नहीं. एक बार चांसेस देने के बावजूद भी उन लोग नहीं बदले, हर्ट करते जाएंगे, तो फिर दे आर आउट ऑफ द पिक्चर फॉर लाइफ. For life. I like this. Yes. Gone means gone. That's it. Yes. I like it. It is, क्योंकि तभी उन लोगों को लेसन सीख पाएंगे अगले. वो सीखेंगे या नहीं सीखेंगे कंसर्न नहीं है मैडम. इट इज रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ. इट इज रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ कि भाई हमने चांस दिया, हमने अच्छे से बात भी करी, लेकिन फिर भी अगर ठीक, इट्स फाइन. इट्स फाइन. वेरी नाइस. इफ यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू आर गोइंग टू डू दैट. या उनको भी एक सजा होगा कि भाई चलो भाई दूसरों के साथ ऐसा ना बिहेव करे. See, this nice person I have lost, maybe if I behave badly, the next I will lose everyone in my life. So that will be a lesson for them. And of course, for you, it's your self-respect. I accept that. Yeah. Very nice. Very well put in. चाहे सोने बरसे तो भी नहीं. I really love the way you put that. Very beautifully. Very nice. Dear sir, do you watch movies? Being an academician, do you get time to watch movies? I get time, but I usually don't prefer to go to movies. But ऐसे मूवीज जो एक फैमिली में और सोसाइटी में एक हार्मोनी का मैसेज देता है, जैसे हम साथ साथ है मूवी है, तो ऐसे टाइप के मूवी मुझे अच्छे लगते हैं. वो फिर दो लव बर्ड्स हैं, उसमें झगड़ा दोनों फैमिली का, तो हम रिलैक्स होने जाते हैं या हम टेंशन लेने जाते हैं, किसी और का टेंशन, किसी और की स्टोरी का टेंशन हम लेके आते हैं. तो ऐसे मूवी मुझे ठीक नहीं लगते. इससे तो अच्छा है कि आई यूजुअली यूज्ड टू सी प्रीवियस ओल्ड मैच, क्रिकेट मैच एंड ऑल दैट. तो
हार्मनी जिसमें है, जिसमें थोड़ी हंसी खुशी है, कुछ अच्छा मैसेज सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए लेके हम आए, तो दोज मूवीज आई आई लव द मोस्ट। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। Dear sir, you're a strict professional. You're a professional, and even you are connected to the land. You are like conducting farming activities, etc. So, would you prioritize winning a lottery or being a professional connected even to the farm as well? अगर मैडम, आपको लॉटरी मिल गई तो आपको कैसे लगेगी? लॉटरी में सबसे पहले मैं अपने विचार रख देता हूँ। जी जी। ये लॉटरी सट्टे वगैरह में तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि ऐसा कुछ होता है, और होता होगा तो हमारे साथ तो होगा ही नहीं, वो भी मैं मानता हूँ। और मैंने इसी चक्कर में बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा है। कुछ जान पहचान में भी कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में या किसी ऐसे सट्टे टाइप की चीजों में, क्रिकेट के सट्टे में वगैरह में हमने बर्बाद होते हुए देखा है। तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फैमिली, फॉर सोसाइटी, फॉर माई स्टूडेंट। तो हम ऐसी कुछ भी एक्टिविटी ना करें जिससे समाज में एक अलग मैसेज जाए। या देखो, हम वी आर वर्किंग इन पब्लिक डोमेन, तो हमारी इज्जत होगी तो भी बड़ी होगी, और बेइज्जती होगी तो भी बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हम, और लॉ ऑफ इकोनॉमिक, नेचुरल नेचुरल लॉ क्या है मैडम? कोई भी चीज एकदम से तो हो ही नहीं सकती। किसी भी पेड़ को, इफ यू प्लांट अ प्लांट टुडे, टुमारो यू कैन नॉट गेट द फ्रूट्स, but yes, after 3 year 4 year, let it be a tree, let the fruit come, then you will definitely get the fruits for next 100 years, next 100 years। लेकिन आज का कच्चा आम कल अगर पका के खाना है तो कार्बाइड पाउडर वाला खाओगे, you will lose all the charm of eating alms, it becomes a procedure only। तो लॉटरी लगी तो भी मैं ऐसे काम करना चाहूंगा जैसे मैं आज के समाज में देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी केयर प्रॉपरली नहीं हो रही है। मैंने देखा है मैडम, कुछ तो नजदीक की सोसाइटियों में भी मैं देखता हूँ कि दे नीड रियली गुड केयर। तो एक ऐसा ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाए कि कोई भी बुजुर्ग यहाँ आके अच्छे से उसकी पसंद का कुछ खाना खाए, 2 दिन रह के जाए, उसकी उसकी कुछ बातें यहाँ पे कुछ लोगों के साथ शेयर करे, या कुछ अच्छी बैठने की जगह हो उसके, और वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वृद्ध लोगों को हम शांत रख पाएंगे, उनकी उनका एक सेटिस्फेक्शन लेवल हम ठीक ठाक रख पाएंगे, जिसकी जिसकी इनको तलाश है, जिसको इनकी जरूरत है। तो आजकल के जमाने में लिविंग लाइफ इज डिफरेंट थिंग, बट लिविंग लाइफ विथ सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट कंप्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। कुछ लोगों के घर में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे पैसे भी होंगे, लेकिन बुजुर्गों को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बिकॉज नो वन इज फ्री टू स्पेयर अ टाइम। दैट इज, मैं ये ऐसे टाइप का काम करना चाहूंगा। दूसरा, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी है कि मैं अगर कहीं पे कुछ बन गया कैसे भी, ऐसे जैसे आप जैसे बोल रही है लॉटरी लगी, वैसे पैसे आ गए, तो मैं एक हॉस्पिटल छोटा सा बनाऊंगा जिसमें बहुत ही कम रेट पे ट्रीटमेंट हो। आजकल लोग बाहर खाते खाते बहुत बीमार हो जाते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो गया है कि वो लोगों की कमर टूट जाती है, हमने देखा है जीवन में। तो दैट इज व्हाट इज माय कंसर्न फॉर द सोसाइटी, कि मेडिकल ट्रीटमेंट हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, और एक रिलायबल रेट में मिलना चाहिए, एफोर्डेबल रेट में मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए पैसा हमें अपनी जेब से देना पड़े किसी डॉक्टर्स को या ऐसे। तो वो एक मैं करना चाहूंगा अगर लॉटरी लगी तो, अगर आपने लॉटरी लगवा दी तो। जी जी, जरूर उम्मीद करेंगे, विश भी करेंगे आपको कि भाई मिल जाए, क्योंकि आपके इरादे बहुत नेक है। यस सर। थैंक यू। यस सर, जो आप पूरे ऐसे एक्सप्लेन कर रहे तो आई कैन विजुअलाइज ऑल ऑफ दैट कि भाई आ रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं,
और तो दिन रहकर जा रहे, तो आपने ऐसा शेयर किया, तो मैं पूरा विजुलाइज कर सक रही मैं कि भाई हाउ यू आर डूइंग दैट. तो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट एंड डेफिनेटली वी वुड लव यू विश अ डबल लॉटरी, एक नहीं दो दो मिल थैंक जाए यू, आपको. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़ी सी जैकपॉट. यस डियर सर. डियर सर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आप थोड़े दिन पहले अपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वर्ल्ड कप था, हार गई इंडिया, तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत थोड़ा दुखी तो हुआ, लेकिन फाइनली शो मस्ट गो ऑन। जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है मैडम, अब हार गए तो वो भी तो खेलने के लिए आए थे। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, they did their best. I believe that because throughout the World Cup we have seen their hard work and everything. We appreciate. They are finally our boys. अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो फेल भी हो सकता है, कोई पढ़ेगा ही नहीं तो फेल कहाँ से होगा? मैं वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा हूं तो मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन पहुंचा तो हूं। मैं एक प्रोफेसर भी हूं मैडम। बच्चा फेल हुआ मतलब वो निकम्मा नहीं है, वो यहाँ तक तो आया। अगर पढ़ रहा है तो फेल हो सकता है। कोई पढ़ता ही नहीं है, जैसे कोई झुपड़पट्टी में एक बच्चा है जो पढ़ता ही नहीं है, तो उसके उसके फादर मदर को टेंशन ही नहीं है फेल होने का, पास होने का। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो टेंशन रहती है। तो पढ़ता है तो फेल भी हो सकता है। जब हम फाइनल तक पहुंचे हैं तो हम हार भी सकते हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी हमें सबको डेवलप करनी पड़ेगी कि जैसे हम खेलने के लिए पहुंचे फाइनल तक, ऑस्ट्रेलिया भी खेलने के लिए ही आया था, जीतने के लिए ही वहां तक पहुंचा था। और जो जो बंदे वहां तक पहुंचे वो सारे के सारे अपनी स्ट्रेंथ वाले थे। सपोज करो 30 पोस्ट, आईएएस का 30 पोस्ट निकला है, 30 पोस्ट वैकेंसी, 30 वैकेंसी है। पहले 30 लोग आईएएस में सिलेक्ट हो गए। जो बंदा 31st है, क्या वो इनसे बहुत कमजोर है क्या? कितना अंतर होता होगा उसमें? वो लक की भी बात रहती है, कभी कभी कुछ दिन अपने कुछ दिन दूसरों के भी होते हैं। अ, जैसे कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है फॉर नो रीजन। कई बार कुछ रीजन भी अच्छा होता है तो भी हमें अच्छा फील नहीं होता है। तो वो दिन का, यूनिवर्स का, या ऊपर वाले की कुछ ऐसी लिखावट होगी, लेकिन सेंटिमेंट्स तो डिस्टर्ब होते ही है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। सो आई वाज आल्सो डिस्टर्ब बिकॉज आई लव क्रिकेट। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट सो ब्यूटिफुली एंड वेरी नाइसली लाइक दैट, कि भाई उन लोग भी आए थे जीतने के लिए और हम भी कुछ कम नहीं थे, हम भी गए थे. बट लक उनके तरफ था लक, सो इट्स नहीं, वो फाइन. दैट डे वाज नॉट फॉर अस, ऐसा यस मुझे लगा। वो फील्डिंग में ऐसा, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी फेल, बैटिंग डिपार्टमेंट भी फेल, फील्डिंग डिपार्टमेंट भी, सारी चीजें तो अगेंस्ट नहीं जा सकती है। जी लेकिन फिर भी ठीक है, जो बच्चा पढ़ता है तो फेल भी हो सकता है। जी जी जी. गुजरात में ही खेले थे ना द फाइनल्स इन अहमदाबाद, यस यस, अहमदाबाद. अहमदाबाद। अरे मैडम क्या बताओ गुजरात में तो बहुत बड़ा, बहुत फीवर है मैडम। कोई पूरे सिटी के सिटी लॉकडाउन लगेंगे तुम्हें, ऐसी मैचेस वगैरह सब होंगे तो। बड़े पार्टी प्लॉटों में, स्क्रीन पे, होटलों में, बहुत बड़ा क्रेज होता है गुजरात में। So that's nice to talk and get connected with somebody from Gujarat. I get the feel of the cricket match, like ऐसा कुछ लग रही है, समझो कि ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं. Yes sir. कभी कभी आओ। जी जी जरूर सर, फ्रॉम जरूर. वेयर आर यू मैम? From Hyderabad. गुजरात इज गुड टू विजिट। Yes sir, definitely sir. Dear sir, when you were in school and college, did you participate in sports and games? या आई वाज इन क्रिकेट टीम ऑफ माय स्कूल में। तो हमारे इतना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिकॉज आई स्टडीड इन करजन एंड देन बड़ौदा, वेरी स्मॉल स्कूल। बट यस, समटाइम्स वी यूज्ड टू प्ले, एंड personally after coming home we society boys, we were playing cricket. I was a good player also. And during my graduation I was in the hostel, so there we were playing cricket very fantastically. And in addition to that, as आपने बात निकाली है तो थोड़ा शेयर कर देता हूँ। My son was supposed to be
cricketer in Gujarat team in under 14. Wow. He was supposed to selected on in May June of 2020. लेकिन मार्च में वो लॉकडाउन लग गया. उनका सिलेक्शन मई जून में था. और his previous records and inter matches, inter academic matches and सारे BCA में सब his records were good and he was supposed to be selected. वो हमारे पेरेंट्स को भी बताया गया था कि he has to remain present only, that's it. But हमको क्या पता कोरोना इतना लंबा चलेगा. तो 1.5 साल तक स्पोर्ट्स एकेडमी सब बंद रहा. When it opens, then he crossed 14. and sports authority was not ready to compromise, especially in sports department. And he was good in academics also. So now he's he's in 12th standard. And I hope he will do well in that. He will, he will. Yes. As you said, no, sometimes it is that side, sometimes it is this side. कभी आर कभी पार. तो कोरोना आ गया बीच में, तो फिर it's luck was not on our side. Like no. We took it differently. Yes. Challenges हर जगह, रास्ते में हर जगह पे बम्पर तो होते हैं. हमें अपनी गाड़ी कहाँ से लेके जाना है वो समझ हमें. We have to develop that understanding. If we really want to be successful, if you are going this way, if there is a dead end, you should change the road. Go to another road which carries you to your destination. He is good in academics also. We convinced him. He is convinced because till under 19 we cannot wait for 5 years. और उस लेवल पे बहुत सारी चीजें होती है. अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो life has gone. And from 10th, 11th, 12th are most important year for the career. So he focused that, and then he has passion. I will again come back in the college days. So that is what is the vision behind that. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for sharing all of that. Thank you very much. Dear sir, what is the change that you'd love to bring in the world? कि भाई इस जगह में change होनी चाहिए और हम इसके लिए प्रयास करेंगे. Very core question, madam. बहुत ही जरूरत है इस दुनिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की, पॉवर्टी कम करने की. ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बात हम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला काम अगर करना चाहिए तो हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट ऐसे बातों करने से, कॉन्फ्रेंस करने से ऐसे नहीं बढ़ेगा. इसके लिए स्किल डेवलपमेंट इज ओनली अ रियल टूल जिसके ऊपर मैं खुद बहुत प्रेशर करता हूँ. It generates the employment. Now my study says our Asian countries are full of population. सारी एशियन कंट्रीज जो हैं बहुत पॉपुलेशन है उसमें. एंड मोस्ट ऑफ द मास इज वेरी ह्यूज मास इज बिलोंग टू यूथ. 30-35 की एज में बहुत पढ़ते हैं. तो और स्पेशली इंडिया जो है उसका जो एवरेज लाइफ है वो 30-32 है. तो हमारी तो और लॉटरी लगी हुई है. हमारे पास यूथ है कंपेयर टू द वर्ल्ड. लेकिन हमारे पास और दो चीज है. यूथ तो है लेकिन तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी ज्यादा है. हमारा यूथ ज्यादा है लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को, आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए वो स्किलफुल है. क्या हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है वो स्किल्ड वर्कफोर्स है? नहीं है. तो क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम बना सके? बिकॉज सी इट इज नॉट इवेंट कि 2-3 दिन के इसमें हो जाएगा. इट टेक सम टाइम. जब भी समाज में या पूरे बड़े लेवल पे सुधार करना है या चेंज लाना है, वो 1-2 दिन की बात नहीं होती. इट टेक सम टाइम टू. सो आर वी रेडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दोज इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग दोज स्किल्स, something like that? We have to work it out. But at the same time, if we have skilled youth, we can supply them across the globe, especially in the big economic country also. So this is what is my vision.
कि if we somehow able to uh, bring the skill development programs more and more and develop the skills, और वो सारी चीजें स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए। कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे कॉलेज में आए, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, दे डोंट नो चेक कैसे क्लियर होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, दे डोंट नो सेविंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। आजकल सब लोग पैसा खर्च करो, समथिंग लाइक, पीपल डोंट बिलीव इन जैसे पहले जॉब लगा तो मुझे इतने हजार का होना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि एक्सपीरियंस का क्या मीनिंग है, अपने आप को तैयार करो नेक्स्ट लेवल के लिए। अब अब मैंने एक बच्चे को पूछा कि भाई मैं कल को सुबह तुम्हारे को मुकेश अंबानी बना दूं, 50,000 करोड़ रुपए मैं तुमको दे दूं और मुकेश अंबानी साहब की जगह पे बिठा दूं, तो तुम क्या करोगे? वो कुछ नहीं कर सकते मैडम। उनको डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल की प्रैक्टिस इसमें आने के लिए, अदरवाइज वो पागल हो गए, he may lose the mental balance, something like. So we have to start them for this from the school level. Skill development is only a tool कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व होंगे। दूसरा, इन बच्चों को ज्यादा पॉल्यूशन में रहना है, आने वाले टाइम में ज्यादा ट्रैफिक में जीना है, ज्यादा कंपटीशन को फेस करना है, उनके लिए हमें आज से उन बच्चों को तैयार करना होगा। और ये अगर हम कर पाते हैं, स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया विच इज फुल ऑफ पॉपुलेशन 150 करोड़, बहुत बड़ी जनसंख्या है मैडम, वी विल बी द सुपर पावर। Yes. और वी कैन ब्रिंग थरो चेंज अक्रॉस द ग्लोब, ये मेरा मानना है। जी जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, थैंक यू वेरी मच। डियर सर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर बता सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस इतने सालों के, आगे रख के, यू कैन जस्ट शेयर हाउ यू वुड डिफाइन व्हाट इज द अंतर बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? हार्ड वर्क तो शायद हम सब जानते हैं, लेकिन हार्ड वर्क की जर्नी शुरू करके इफ यू कंटिन्यू टू कीप वैल्यू एडिशन इन योरसेल्फ, then day by day you become a smart person. एक I will like to explain you with some example. हमने ऐसा देखा है कि क्या हार्ड वर्क से आदमी अगर सक्सेसफुल होता है, तो रेलवे के जो मजदूर है सुबह 7 बजे टिफिन का डिब्बा लेके निकलते हैं और शाम के 8 बजे आते हैं, वो सबसे सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वैसा है नहीं। फिर अगर हम ज्यादा क्वालिफाइड, ज्यादा एजुकेटेड आदमी को सक्सेसफुल मान लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ हमारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पीएचडी वाले, आईएएस वाले, आईपीएस वाले लोगों को नौकरी रखते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं है। फिर हम ये मानते हैं कि जिनके पास जो ज्यादा डिग्रीज हैं या ज्यादा क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ज्ञान है, तो मैनेजर्स लोग भी मैनेजर्स जॉब करते हैं। तो व्हाट इज दैट थिंग विच, लेकिन कंपनी का सीईओ 2 घंटे आता है ऑफिस में और सबसे ज्यादा माल कमा के जाता है, बराबर। वो डिसीजन लेता है, वो 2 घंटे में, 1-2 घंटे में ही इज टेकिंग डिसीजंस ओनली, एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दोस डिसीजन। तो वैल्यू एडिशन तुम्हारे अंदर, कीप एडिंग वैल्यूज एज पर द नीड ऑफ द टाइम, एज पर द नीड ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप जीवन में टेक्नोलॉजी का यूज करके, अब देखो हमारे पापा जो थे वो बैंकों में लाइन में लगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए लाइन में लगे, बहुत सारा चीज अभी 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन आज के जमाने में लाइन में खड़े रहने वाले हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है, बट दे डोंट वांट टू डेवलप देयर सेल्फ, वो स्किल उनको ऐड नहीं करनी है। तो वैल्यू एडिशन विल मेक यू अ स्मार्ट, एंड दैट मेक्स अ वर्क अ स्मार्ट वर्क। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वेरी क्लियरली। एग्जाम्पल में आप भी दिया कि भाई लाइन में ठहर रहे, अभी दे हैव टू ऐड वैल्यू। जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, उसके पास स्मार्टफोन भी है, लेकिन उसकी उसकी अकल में वो नहीं आ रहा है।
तो अगर वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो यू विल कीप कंटिन्यू टू डू योर हार्ड वर्क, otherwise you can also be a smart person. Yes, superb, sir. Thank you very much for that brilliant answer. With an example. Dear sir, retirement. आपने कभी सोचा कि भाई हाँ ये इस उम्र में हम रिटायर हो जाएंगे, गांव चले जाएंगे, वहां पर ही रहेंगे? एनी प्लान्स फॉर रिटायरमेंट? मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि इफ यू वर्क समथिंग विथ पैशन, आदमी रिटायर हो ही नहीं सकता। रिटायरमेंट हम किसे बोलते हैं मैडम? नौकरी ना जाना एक रिटायरमेंट हो सकता है, वरना काम ना करना वो रिटायरमेंट नहीं है मेरे लिए। तो मैं तो इस टाइप का आदमी हूँ, तो एक्सरसाइज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देता हूँ और करता भी हूँ। लोगों को, बच्चों को इंस्पायर भी करता हूँ कि भाई आप एक्सरसाइज करो, आपको बहुत साल तक बहुत कंपटीशन में जीना है, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना है। आपको पता है मैडम, बहुत कम उम्र में सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, जिसकी रीजन पता है? दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर फेलियर्स। मेजोरिटी बच्चे फेलियर्स ना हैंडल कर पाने की क्षमता की वजह से वो सुसाइड करते हैं। तो हम योगा करा के, एक्सरसाइज करा के उनकी पर्सनल इनर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना होगा। इनको सिखाना होगा कि हम फेल हो सकते हैं, वर्ल्ड कप हमारा चला जा सकता है, हम दोबारा लड़ लेंगे, दोबारा जीत लेंगे। अब वर्ल्ड कप गया, इसके लिए हमारी टीम के खिलाड़ी सुसाइड कर ले, दैट इज नॉट द वे। हमें फिर से उस दुख से बाहर उभरना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, अपनी स्किल डेवलप करनी होगी, दुनिया में सबसे अच्छी स्किल हमारे पास हो उस लेवल पर ले जाना होगा। तो जो पैशन के साथ जो लोग काम करेंगे वो कभी रिटायर रिटायर नहीं हो सकते या नहीं होंगे। हाँ, one particular task they will stop doing because salary will stop, तो वो बंद हो सकती है, लेकिन उस टाइप के बंदे दूसरे काम ढूंढ ही लेंगे। तो अब रिटायरमेंट को रिडिफाइन करना होगा कि रिटायरमेंट किसे हम कह सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि मैं रिटायर ना हूं और लाइफ टाइम कुछ ना कुछ काम करता रहूं, जिससे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता रहूं। पैसों की बात नहीं है, लेकिन किसी और के घरों को, चूल्हे को भी मैं जलाता रखूं। अभी 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 मेरे पास खेती बाड़ी की जमीन है, मैं चाहूँ तो इससे बेच के अच्छा खासा पैसा ले सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। आई एम कंटिन्यू टू डूइंग दैट बिकॉज 5-7 लोगों के घर का वो फैमिली चलती है। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ भी उसमें से पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं दूसरों का फैमिली चलाने के लिए वो काम कर रहा हूँ, और इनको पता नहीं है। वो कुछ चोरी बोरी भी कर लेते हैं तो मैं करने देता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए है। लेकिन ये है, तो हम जैसे लोग तो रिटायर होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम रिटायर होंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सर। सर, आपकी जिंदगी में अपने बचपन से लेके आज तक आपके खास दोस्त के नाम बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत ही सारे। बचपन से लेके एक अमित पटेल था, फिर एक जिग्नेश पटेल था, नरेंद्र चावड़ा, फिर प्रशांत प्रशांत ठाकर था, सौरिन शाह था, एक साजिद पटेल था। बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग कंट्री में चले गए हैं, अभी हमारे साथ नहीं है, कुछ अलग अलग कंट्री में है। फिर अभी सौरभ पटेल हैं, मतलब देयर इज अ बिग लिस्ट के दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट इन माय लाइफ। आर दे कनेक्टेड विद यू स्टिल? यस, वी आर मेरे मेरे पूरी पूरी क्लास की बैच जो है यूएस, कनाडा और अदर यूरोपियन कंट्रीज में है, लेकिन हर 2-3 महीने में एक बार हम लोग मीटिंग करते हैं। आई मीन ऑनलाइन और इज इट ऑनलाइन, ऑफलाइन? ऑनलाइन, ऑनलाइन। और जब भी कोई इंडिया आता है तो मुझे मिलने जरूर आता है। आई एम द पर्सन हु इज इन इंडिया, who is highest qualified among the group, but still I am in India and they are working there in other countries. So that way they value me. Yes, sir. Because you love the soil of India and that's why you stayed back. Yeah, I got many opportunities to go outside, but somehow could not. Yes. Yes, thank you for sharing that, sir. So what about savings, investment for senior age?
So that is a fantastic sawal because everyone could not have a government job and not pensionable job. So anything in excess is a poison. अगर आप जितना भी कमाते हो उसमें से 15 से लेकर 25% तक का आप सेविंग करो, क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट तुम्हारी होनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बाद में ओल्ड एज मेडिकेशन के एक्सपेंसेस को भी आप ख्याल में रख सकते हो। तो मैडम मैं तो सेविंग में मानता हूँ और सेविंग करनी भी चाहिए हर एक को। सेविंग से एक फायदा ये भी है कि यू आर स्ट्रेंथनिंग द कंट्री इकोनॉमी ऑल्सो। लोग मानते हैं कि आप कुछ परचेस करते हो तो ही आप बाजार को सर्कुलेट करते हो, लेकिन आप सेविंग से भी बाजार को सर्कुलेट कर सकते हो। तो उसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक है, ग्रीन इकोनॉमी का पूरा कंसेप्ट है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेविंग में तो मैं मानता हूँ, और हर बंदे को, अगर तुम्हारे को जरूरत नहीं है तो फालतू में किसी भी चीज का, जैसे हमारे नल में पानी आता है, अगर हमारे को जरूरत नहीं है तो फालतू में उसको वेस्ट ना करें। किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को। आपको जरूरत नहीं है, आप जरूरतमंद को दे दो, चाहे वो पैसा हो, पानी हो, कुछ भी हो, आपकी कोई रिसोर्स हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारी कंट्रीज में हैं जिनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, आप उनको भी तो हेल्प कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के फालतू में। अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ मैच हुआ था, 500 रुपये का टिकट था, वो 5-10 लाख में बेच रहा था कोई बंदे ने खरीदा। तो मैंने उसको बोला था कि तुम्हारी मति मार गई थी क्या? इतने इतने पैसा उसको क्यों देना था जो ऑलरेडी कमा रहा है? तुम्हारे को तो वो टीवी पे देख लो, बाकी के पैसे घर में बांट दो, कुछ फूड लेके चले जाओ, कुछ कपड़े दे दो, किसी को कुछ हेल्प कर दो, किसी बच्चों का स्कूल फी, कॉलेज का फीस भर दो। मुझे बोलते मेरे पास बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनको कुछ स्कॉलरशिप तुम्हारे नाम का दे देता 1 साल का। बोलता है बात तो सही है, लेकिन वो दिमाग में आया नहीं। मतलब उसके लिए दिमाग भी सही रखना पड़ता है। एनीवे, तो सेविंग तो करनी चाहिए मैडम, जी जी सर। अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी, लेकिन किसी चीज को वेस्ट करे इससे तो सेविंग अच्छा है। जी जी, वेरी ट्रू। थैंक यू फॉर दैट लवली आंसर सर, बहुत अच्छा लगा ये आंसर को सुन के फ्रॉम योर साइड, दैट इज वंडरफुल। डियर सर, व्हेन डू यू स्माइल ऑफन? आप मुस्कुराहट कब आती है आपके चेहरे पे? मैं हंसता रहता हूँ यूजुअली। तो ऐसे में थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा, नोन एज सीरियस पर्सन, लेकिन वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सी, on a professional front we cannot get associated so friendly with everyone. We cannot talk, we cannot discuss so friendly with everyone, but at the end of the day we all are human beings. We also need some emotional touch या friendly touch और family चाहिए शाम को। तो usually I am known for the feelers, कुछ कुछ हंस चुटकुले में थोड़ा हंसी मजाक तो कर लेता हूँ बात बात में। Yes, that's the essence of life, humor, kabhi kabhi, Yeah, that's really nice. yeah. Sir, do you have any weakness कि भाई देखो मुझ में ये कमजोरी है? हाँ, ये कमजोरी है मैडम, बहुत ही लोगों ने बताई भी है। मैं ब्लंटली किसी को कुछ बोल देता हूँ, मतलब जो अंदर और बाहर, ऐसा नहीं कि दिमाग कुछ और सोच रहा है और मैं बोल कुछ और रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कोई किसी का कुछ गलत है तो मैं गलत उसको बोल देता हूँ, तो कुछ लोग उसको एडवर्सिव भी लेते हैं और उसका रिएक्शन भी देते हैं। तो लेकिन मैं आउटस्पोकन तो हूँ, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है। तो दैट इज द माय मेजर वीकनेस। जी जी जी,
कभी कभी अच्छा भी लगता, सच बोल दिए तो हो जाता, कभी कभी ऐसा लगता हमको, नहीं, लेकिन आगे वाला कैसे लेता हमको वो नहीं मालूम। एग्जैक्टली मैं फ्री हो जाता हूँ अंदर से जी। कि यार उसको मैं गोल गोल घुमा के अच्छी अच्छी बात करके उसमें जो चीज है वो मैं एक बार बोल देता हूँ, तो मैं फ्री हो जाता हूँ। बाद में वो कैसे लेता है, दैट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। यस। यस। डियर सर, आपको सबसे ये सब काम करने में, अपने कॉलेज का काम, बीइंग द डायरेक्टर, प्रिंसिपल का काम तो बहुत बड़ी काम बड़ा है, लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, कुछ गलत है तो प्रिंसिपल के नाम ही आ जाता है, सारी चीजें नहीं भी हुआ जिम्मेदारी। तो प्रिंसिपल के नाम, कुछ हुआ भी तो प्रिंसिपल के नाम ही आ जाती है। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आप अपना स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव करते हैं? आ, मैं रेगुलरली एक तो थोड़ा मेडिटेशन और योगा भी करता हूँ, और एक्सरसाइज तो मेरा लगभग डेली का है। सेकेंडली, आई एम लकी इनफ टू हैव अ वेरी वंडरफुल फैमिली। मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा वो है, मुझे मुझे बिल्कुल ट्रैक पे रखते हैं। बिकॉज माई सन वॉज क्रिकेटर, तो उसने एकेडमी में जाके उसका हेल्थ वेल्थ का सारा नॉलेज उसके पास बहुत कुछ है। और माई डॉटर वॉज द क्लासिकल डांसर, she has attended those academics, but because of this again corona and 10th and 12th and all that, she left in between. Otherwise she could have completed the Bharatanatyam course of 7 years, but somehow वो बीच में छूट गया उसका। तो वो भी क्लासिकल डांसर रही। उसके स्कूल में कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन वगैरह सब रहे तो इन लोगों ने ही रिप्रेजेंट किया, गणेश वंदना या शुरुआत के सुस्वागतम वगैरह से। तो I have ailing mother, about 80 years old. So they are my core strength. My family members are my core strength. My wife is fashion designer, and she is completely in support with me. So I am deriving my strength from family only. I lost your voice. Yes, sir. That's brilliant, sir. Thank you very much. I muted myself. Thank you for reminding me. Is your mom with you? Yeah, माँ yeah. आपके पास है, अभी अपने पास ही हाँ है मेरे पास। है? Yes. So give our love to your daughter, your son, your wife, and your mom as well, because you really say yes. My whole family is my strength. So that's Yeah, yeah. I could able to finish my PhD because of my family, because I remember those days, 2013. So from my journey started from 2006। एक्चुअल रजिस्टर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है 2008 में हुआ। तो फ्रॉम 2008 टू 2013 होल फैमिली वाज वर्किंग एज पर माय शेड्यूल, एज पर माय रिक्वायरमेंट। जब रात को मैं 2 बजे खाना खाता हूँ कुछ काम खत्म करके, तो माय वाइफ विल प्रिपेयर रोटी एट 2 o'clock, क्योंकि उसको एक है कि मुझे गरम रोटी ही खानी है, ठंडा नहीं खाना है। तो दैट वाज द पैशन ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर। beautiful. That's very nice. ऐसे ऐसे रहा। अगर फैमिली हमारी अच्छी हो, सपोर्ट हो, तो दुनिया में कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। यस, दैट्स वेरी नाइस। अगर हरा भी दिया तो यहाँ पर सहारा देने वाले हैं कि हम हैं आपके साथ, तो दोबारा यस। ट्राई कीजिए। यस, दैट्स रियली नाइस। जैसा आपको कभी कभी डर लगता है किसी चीज का? डर तो मुझे एज सच तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मुझे डर इस चीज का लगता है कि जैसे आजकल के जो बच्चे, वो वो क्राइम ओरिएंटेड ज्यादा हो गए, बात बात में गुस्सा करके। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात करता हूँ, किसी बच्चे को कोई लड़की के साथ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके दूसरे लड़के ने उसको चाकू मार दिया फॉर नो रीजन। फिर हम तो कॉलेज में बैठे हैं, तो बिल्कुल टीनेजर्स को के साथ डील करते हैं, यंगस्टर को हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीजें, ब्रेकअप होना, फिर अगेन मैचअप होना, फिर बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे सामने खुल के। तो मैंने ऐसा ऐसा भी देखा है कि किसी लड़की ने दूसरे से बात कर दी, तो किसी दूसरे लड़के ने तीसरे को मार दिया। मार दिया मतलब गला रेत के मार दिया, समथिंग लाइक। तो
ऐसी चीजों में हमारे जो नजदीक के लोग हैं, जैसे हमारे कुछ बच्चों का ब्रॉटअप ही इस टाइप का होता है, उनकी फैमिली की हिस्ट्री ही ऐसी होती है, तो इनको इसमें कुछ नया लगता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सीधे बच्चे हैं कि जो सच में ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कभी कभी वो किसी और की वजह से विक्टिमाइज हो जाते हैं। उन चीजों से डर लगता है, जिसकी कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर जो है उसके साथ कुछ गलत ना हो। फिर मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है हमारी बहन बेटियों का भी। जैसे कई बार ये घटनाएं, निर्भया टाइप की जो घटनाएं हम सुनते हैं, ये सब चीजें हमारे को नहीं अच्छी। मैं तो कई कंट्री में जाता हूँ एज ए एक्सपर्ट, कॉन्फ्रेंसिस वगैरह में कई कंट्री मैंने विजिट करी है। तो ये सारी चीजें जब लोगों के साथ डिस्कस होती है, दूसरे कंट्री वाले के साथ, तो थोड़ी शर्म सी महसूस होती है कई बार, सही में बताऊं। तो ये चीज, इन चीजों से मुझे डर लगता है। वरना आप काम कितना भी करो, बिजनेस कितना भी बड़ा करो, आप देश दुनिया के साथ लड़ के काम करो, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये जो सोसाइटल इश्यूज है कुछ कुछ जगह पे, जैसे वुमन वुमन को फ्रीडम नहीं है, करप्शन वाले लोग हैं, कुछ काम होते ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होते ही नहीं, अगर आप पैसा नहीं, घुस नहीं देंगे तो होगा ही नहीं। तो वो सारी चीजों हैं। वुमन वैल्यूज, अब देखो, देश आजाद हुआ तब से अब तक 50% हमारी स्ट्रेंथ अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज रही। लेडीज को वो सम्मान ही नहीं मिला है कि भाई आप लोग भी काम कर सकते हो, आप भी कदम से कदम मिला के काम कर सकते हो। अब अब देखो, एक लेडी बाहर का भी काम, बैंक में मैनेजर भी है, घर पे आके भी उसको काम करना है और बच्चों को भी संभालना है। तो जेंट्स को भी तो इक्वली कुछ शेयर करना चाहिए। वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो आके डबल काम कर रही है। तो जेंट्स को थोड़ा उसका वर्कलोड शेयर करना चाहिए, और वो है नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, समाज का जो फुल डेवलपमेंट नहीं होता है। और सबसे बड़ी चिंताओं का कारण यह है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी में रिलीज होता है, और वो हमारे अपने लोगों पे ना हो, इस चीज की मुझे चिंता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी एक बंदे को मैं जानता हूँ जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाते हैं। उसने 25-30 लाख रुपए देके किसी दवा को पास करवाया, जो नॉट एट पार नहीं थी एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन उसने पास कराया। ओवर द पीरियड उसके साथ ये हादसा हुआ कि वही दवा उसकी माँ को लेनी पड़ी, और उसकी माँ को रिएक्शन आ गया। बाद में वो कई कई लाख रुपए खर्च किया, लेकिन वो उसकी माँ को ठीक नहीं कर पाया। तो ये घूसखोरी जो है ना, इन चीजों से डर है। आप समझ रहे हो मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, कि भाई घूसखोरी की वजह से एक तो गलत दवा मार्केट में गई, अब किसी और को रिएक्शन आया कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन उसकी माँ को तो आया। अब वो दवा तो बिकी, कई हजार लोगों के पास गई। तो किसी अपने के साथ कुछ गलत हुआ होगा, इन चीजों से डर लगता है। बाकी डर की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी सब तो हम कर ही लेते हैं मैडम। Muted, you are muted. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you for sharing all of that. That's really very nice. Thank you. What really scares you, you've shared. Yeah. बहुत को आपने कहा, बहुत सही भी आपने कहा कि भाई डर यहाँ इस इन चीजों से लगती है, इन लोगों से लगती है। ऐसी चीजें हमारे किसी के साथ कुछ गलत ना कर दे, ऐसी चीजों जी, की वजह से। वेरी ट्रू। ये सर, आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है सर? Obviously it is green. ग्रीन? Yeah, green because it's a it's a color of growth and life, vegetation, farming, सब, प्रॉस्पेरिटी? prosperity. यस, तो ब्यूटीफुल।
Yes, sir. Sorry. No worries, sir. Yes, sir. Dear sir, I would like you to share a proverb, एक मुहावरा या कोटेशन, एक अच्छी सी सुना दीजिए हमें. बड़ा मुश्किल काम कर दिया, लेकिन you you perform your duties in a best way. Rest one should leave to Almighty God, as per Gita. हमें और कुछ भी सोचना है, रात को 10 साढ़े 10 बजे शांति से सो जाओ, लेकिन याद रहे आप काम ठीक ठाक कर रहे हो, नीति से कर रहे हो, एक्सेप्टेबल वे में कर रहे हो. बिलीव मी, समथिंग गुड विल डेफिनेटली रिटर्न टू यू वन डे. तो सबसे अच्छी सही लाइफ जीने के लिए आप अपनी ड्यूटी परफेक्टली करें. एक चीज मैं शेयर करता हूँ. वंस आई वाज कॉल्ड एट हाई स्कूल ऑन रिपब्लिक डे as a chief guest for flag hosting or something. I just shared my speech. Then during lunchtime, one student came to me, student maybe 7 8 standard student. मुझे बोला, सर मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मैं तो इतना छोटा हूँ, क्या कर सकता हूँ. वो इतना प्रभावित हुआ था कि उसको ये हो गया कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए. आई आंसर्ड हिम, तुम जो कर रहे हो ना, वो सबसे अच्छे से करो. तुम्हें गोली बंदूक लेके सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है. वॉट यू डू इन अ बेस्ट वे. दैट इज ऑल्सो ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी, ग्रेट सर्विस टू द नेशन. तुम अगर पढ़ रहे हो तो सबसे अच्छा पढ़ के दिखाओ, सबसे बेस्ट पढ़ो, और सबसे अच्छा पढ़ के सबसे अच्छा अमलदार बनो, सबसे अच्छा ऑफिसर बनो. वो बहुत खुश होके गए. सो यू डू वॉट एवर you do in a best way, in a best acceptable practices. That is a great service to the nation. This is what I believe. जी, thank you very much for sharing that. Thank you, sir. That's really nice. जो भी कर रहे हैं हम सही दिल से, सही मन से, तन मन और धन पूरा डाल के उसको सही तरीके से करना है, और लीव इट टू गॉड. यस, बाद बस में भूल कर्म जाओ करना उसका, है और बाकी फल के लिए तो भगवान के हाथ में छोड़ देना है. छोड़ जी देना है. बिल्कुल. जी. डियर सर, आपको पेट्स पसंद है सर? हाँ, पेट्स तो मुझे है पसंद, मेरे बच्चों को भी है, लेकिन मैं लाने नहीं दे रहा हूँ. बिकॉज सी, having pets is really nice, and we love the pets also, because at my village, at my uh, on my farm, we had 2 dogs. But then afterwards, we have to arrange manpower. We have to take care of everything. We can't keep them as a slave. We have to have a complete arrangement for them with love and respect. एनिमल का भी खुद का रिस्पेक्ट होता है मैडम. वो हमने देखा है, जो बंदा कुत्तों को थोड़ा इधर उधर करता है तो उसके पास नहीं जाएगा. मैंने तो डे टू डे लाइफ में देखा. तो जब तक हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि भाई उनके रख रखाव के लिए हम कुछ ठीक करें, तब तक तो मैं पेट को रखना नहीं समझता हूँ. लेकिन यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ माय डॉटर एंड माय सन, we will have few pets because they love a pet a lot. जी सर, जी सर. जी सर, आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं? ऐसे ज्यादा तो नहीं, गुजराती, हिंदी और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आई कैन स्पीक. जी जी. अगर आपके सामने एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखे तो आप उसको मानेंगे सर? पता है. छोटी सी गाना गा दीजिए हमारे लिए, यार, आपका फेवरेट गाना, अगर श्लोक हो या भक्ति कोई गीत हो ऐसा, या एनी सॉन्ग आपका पसंद. बड़ा मुश्किल काम कर दिया आपने. चलो. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. बस अब ज्यादा मत गलवा.
जी सर, प्लीज। यू वांट टू सिंग सम अदर सॉन्ग इन गुजराती में, 2 लाइन? हमें नहीं आती गुजराती, थोड़ा सा समझ में आता है लेकिन बात करनी नहीं आती। तो इफ यू कुड सिंग 2 लाइन्स एनी ऑफ द सॉन्ग दैट यू लव। गुजराती में तो मैडम मुश्किल है, मैं ज्यादा इन चीजों में कहाँ रहे मैडम। मुश्किल मुश्किल काम दे दिया आपने, मुझे एक लेक्चर दिलवा दो, लेक्चर दे देंगे। ट्राई कीजिए सर, लहर। बस 2 ही लाइन गा दीजिए। दूसरा दूसरा एक हिंदी में बता देता हूँ, जी एक जी इंस्पिरेशन जो है, जी जो मेरे को अच्छा लगता है। जी लहरों के डर से नैया पार नहीं होती, लहरों से के डर से नैया पार नहीं होती, नैया पार करने के लिए खुद की हिम्मत भी रखनी पड़ती है। जी जी जी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑब्लाइजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज वेरी नाइस, दैट्स रियली नाइस। वही मतलब से गाया है कि भाई उसमें है कुछ टू टू होल्ड एंड गेट। डियर सर, अगर भगवान आपके आपके आपको एक अच्छा सा तोहफा दे रहे हैं कि भाई मिस्टर किरीट कुमार, ये आपका तोहफा है, आप चुन सकते हैं हम्म। सुपर पावर, तो आप हम्म। कौन सा सुपर पावर चुनना चाहेंगे सर? मतलब मैं कौन सा अवतार बनना चाहूंगा, मतलब क्या बनना चाहेंगे? नहीं, आपको एक आई लेट मी जस्ट गिफ्ट, ये अच्छा। गिफ्ट कि भाई ये शक्ति ले लो आप। हम्म। शक्ति, इतने सारे शक्तियां हैं, आप चुन लो इसमें से आपको क्या चाहिए, कौन सा सुपर शक्ति चाहिए आपको, किस तरह के पावर चाहिए? मैडम मुझे, मैं ये चाहूंगा कि मुझे, मैं इतना बड़ा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, इतने फ्यू करोड़ ऑफ लोग इसमें काम करें, मैं इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, ये शक्ति मुझे दे। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगा मैडम, मैडम आपको पता नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का पेन मुझे पता है। मैं ग्रेजुएट होने के बाद कई लोगों को मरते हुए देखा है अपनी लाइफ में। 26 साल मुझे हो गए कॉलेज में बैठे, हमने क्या क्या देखा है। घर से प्रेशर आता है, कुछ माँ बाप में उतनी अकल नहीं है, उसकी शादी करा देते हैं, बाद में बीवी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइकिंग है या नहीं है, उसको इंजीनियरिंग में डाल दिया जाता है, उसकी कैपेसिटी है या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अर्निंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, तो बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इन चीजों को आज नहीं तो कल ओवरकम, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हैंडल द फेलियर्स, देयर फेलियर्स। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है आज की दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैडम आप देखो, कहीं पे अगर 100 पोस्ट की वैकेंसी है, 10 लाख एप्लीकेशन आती है 100 पोस्ट के लिए, आप सोचो। और कितने ओवर क्वालिफाइड लोग। अभी मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी का, बिहार में कुछ 400 पदों के लिए, प्यून की पोस्ट के लिए आवेदन निकला था। There were more than 12 lakh applications, and out of that 4 lakh PhD holders. They applied for the post of a peon. Not because they are not capable, because they are capable, but they don't have a job as of now. ये मैं ईश्वर से ये बोलूंगा कि मुझे ऐसा कुछ, मैं फोकट में नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके खाते में पगार जमा करो, ये नहीं बोलूंगा। कुछ ऐसा काम मुझे इतना बड़ा दो, इतनी साइज का काम दो कि 10-50 करोड़ 100 करोड़ लोगों को मैं एम्प्लॉय कर दूं पूरे वर्ल्ड में से, और वो काम करे, उसमें से कमाए वो, समथिंग लाइक। ईश्वर से फोकट में मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, आई थिंक यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, सीरियसली। क्योंकि इतनी बड़ी बात आपने कहा कि भाई यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती जाएगी तो क्राइम रेट भी बढ़ेगी उसमें। मैडम आजकल जो हम बोलते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, साइबर, वो बंदा खाली बैठ के, उसको कहीं से तो पैसा चाहिए, उसको भी तो जिंदा रहना है, उसको भी तो खाना चाहिए स्वयं को। तो कहाँ से लाएगा? जो ढंग से जी रहे हैं उन्हीं से जिनकी सही नौकरी धंधे हैं वहीं से वो ला सकता है ना, उसको तो मिल नहीं रही है।
तो जो सभ्य तरीके से या अच्छी तरीके से जीना जानते हैं या चाहते हैं, वो लोग भी शांति से नहीं रह पाएंगे। हाँ, आप लॉ एंड ऑर्डर से कहाँ तक दबा सकते हो और कितनों को दबा लेंगे? आपके पास ना तो इतनी पुलिस है ना कुछ भी। तो समय की ये डिमांड है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना पड़े, अगर आपको शांति से रहना है। जी जी, very nice. You have spoken on a very important sensitive topic, that is unemployment. Yes sir, पढ़ते जा रहे बच्चे और भी higher studies, as you said, 4 lakh people, PhD people have applied for the post of a peon. आप देखो, मैं थोड़ी ग्लोबल लेवल की बड़े साइज की भी बात कर लेते हैं। पुराने जमाने से तो आज के जमाने में ज्यादा एजुकेशन बढ़ा है। आई मीन इंस्टीट्यूशंस बढ़े हैं, स्कूल्स बोले, यूनिवर्सिटीज बोले, कॉलेजेस बढ़े, ज्यादा कॉलेजेस बड़े हैं, मीन्स एजुकेशन बढ़ा है। लेकिन साथ साथ में क्राइम रेट भी बढ़ा। तो क्या सच में एजुकेशन बढ़ा? और बढ़ा तो क्राइम रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन बात एक्चुअली ये हो गई कि एजुकेशन तो बढ़ा, लेकिन हमने मूल्यों मूल्यों के साथ नहीं पढ़े, वैल्यूज। वैल्यूज के साथ नहीं चले हम। ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो इंजीनियर और फिजिक्स ग्रेजुएट। वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था ओसामा बिन लादेन। उसने अपना नॉलेज कहाँ डाला और किस डायरेक्शन में एप्लीकेशन अप्लाई किया उसका? अब सोचो, को समाज के लिए कोई सिस्टम बनाता, कोई अच्छी मशीन बनाता, तो इंडस्ट्री में या समाज के कितने लोगों को काम लगता हो, अपना दिमाग अगर वहां चलाता तो ये चीज हम मिस कर चुके हैं वैल्यूज के साथ। तो एजुकेशन तो बड़ा है, लेकिन साथ में वैल्यूज नहीं बढ़ी है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। वैल्यूज में क्या होता है कि तुम किसी भी जान पहचान वाले को जॉब दे दो। अब जैसे एक 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 रिजर्वेशन बहुत खतरनाक चीज है। वो आई डोंट नो वेदर आई एम टेलिंग यू दी is it a correct platform or not, but I have to bring to your notice when you have told me. अब 90% वाला बच्चा वो कदम कदम पे ठोकरे खा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज ही इज जनरल कैटेगरी पर्सन। और एक 45% 40% वाला बच्चा एक अच्छा खासा सांप बन के बैठा है, जिसमें वो अकल नहीं है कि उसकी इनकम का कैसे मैनेज करूँ, वो सारा जो पोर्टफोलियो उसको दिया गया है उसको कैसे मैनेज करूँ, वो कैपेसिटी नहीं है उसकी। तो और वो बहुत जगह पे हम पर्सनली भी देखे हैं, एक्सपीरियंस किया है। तो देश का कुछ कुछ जगह का एडमिनिस्ट्रेशन लूला लंगड़ा रहेगा, लूला लंगड़ा रहेगा, जबकि एक इंटेलेक्चुअल आदमी जो है वो भी परेशान, और जो नॉन कैपेबल आदमी है वो भी परेशान, क्योंकि उससे सिस्टम ठीक चल नहीं रहा है। तो ये टाइप की जो सरकमटेंसेस है, अब वो इंटेलिजेंट बच्चा जो है 90% वाला, वो अपना रास्ता खुद निकालेगा। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो अपना रास्ता निकालेंगे। कुछ लोग गुस्सा करेंगे, कुछ लोग उस चीज को इतना एडवर्सली लेंगे कि वो क्राइम में चले जाएंगे। और बेसिकली तो वो इंटेलिजेंट है, वो क्राइम भी इंटेलिजेंटली करेंगे। तो वो सोसाइटी को परेशान भी बहुत इंटेलिजेंटली करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये एक इकोसिस्टम टाइप का है, एक साइकिल है। तो उसको भी समझना पड़े, आज नहीं तो कल। जी 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 सर। डी सर, अगर आपको मौका दिया गया, हाँ। एक मशीन आपके हाथ में दे दिए, एक बटन दबाने से आप पुराने जमाने में चले जाएंगे, वहां पर जाके किसी और का जिंदगी जीनी है और फिर आ जानी है, आप किसका जिंदगी चुनेंगे वहां पर जाके? ऐसे तो बहुत ही सही लोग रहे, कृष्ण भगवान ही रहे। उसने समाज के उपयोगी बहुत सारी चीजें करी, नो डाउट। उसकी जिंदगी खुद बहुत दुखी रही, वो खुद भी बहुत दुखी रहे। वो बाय बर्थ वो जेल में बर्थ हुआ, फिर बाद में उसके मादर फादर को कुटा गया, वो किसी और के घर में जाके रहा, वहां से भागा, वो बहुत कुछ हुआ उसके साथ भी।
बट स्टिल उसमें लर्निंग ये थी कि वो उसने प्रेजेंस में जीना सिखाया कि तुम्हारा कुछ भी पास्ट वास्ट कुछ भूल जाओ, फ्यूचर की चिंता ना करो, अभी क्या कर सकते हो ये बात करो। तो उसमें से लर्निंग बहुत है कि भाई अ, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, क्या सरकमस्टेंसेस है उसमें, किस तरह की हमारी एक्शन होनी चाहिए। तो उसी को मैं ज्यादा मानता हूँ, कृष्ण भगवान को। तो ही इज बिगेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत बढ़िया मैनेजर था। म्यूटेड। Yes, yes. Thank you, sir, for sharing all of that. Thank you very much. Thank you so much. अभी एक बड़ी सी क्वेश्चन है, क्या आप दूसरों को जल्दी माफ कर देते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, मैं बहुत माफ कर देता हूँ सबको, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है ऐसा। मैंने अपने आप को सिखाया है। किसी का लिए मैं दुश्मन हो सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी नहीं है, आज की तारीख में कोई नहीं है। अगर एक स्केल आपको दिए 1 to 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अपने आप को कैसे रेट करेंगे माफी को लेके? माफी को लेके 10 आउट ऑफ 10। मैं कुछ वो रखता ही नहीं हूँ, जेलसी नहीं, ना किसी से कुछ बदला, रिवेंज या कुछ, नथिंग डूइंग, नथिंग। वो अपने रास्ते पे शायद वो सही हो सकता है, मैं अपने रास्ते पे मैं सही। मैडम, हाथी को चलते रहना चाहिए, जी 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 कुत्ते भौंकते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। जी जी जी, बहुत खूब। डियर सर, डियर सर, वी कम टू एन एंड नाउ, टू द मेन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू तो खत्म हो चुकी है, अभी बहुत सारी क्वेश्चंस है, बट आईड लाइक टू नाउ टेल यू दैट द मेन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू हैज कम टू एन एंड। वी हैव स्टिल लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मेरे मन में है कि भाई आपसे पूछना है। हम फिर आपको बुलाएंगे इस मंच पर, और फिर आपसे बातें करके हमको बहुत अच्छा लगा। ज्यादा क्या लग रही, विजडम, आई डोंट नो व्हाट इज विजडम इन हिंदी। हिंदी में विजडम को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। वो आई काइंड डोंट, ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं आप। या तो जो अच्छी सोच कह सकते जी हैं। जी हाँ, तो यू हैव अ गुड विजडम शेयरिंग, लाइक यू नो, आई शुड गेट द करेक्ट वर्ड। हम्म, तो गूगल करके पता पता करना है कि भाई हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। सो हम्म, यू हैव लॉट ऑफ विजडम, यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ विजडम टुडे विद अस, यहाँ पर बांटे हैं, और बहुत सारे भी है which I would love that you come once again and share all of that. Yes sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Yes sir. एक छोटी सी राउंड है 5 मिनट और का, another 5 minutes, that is called rapid fire round sir. या It will take only 5 minutes, जहां पर आंसर एक शब्द में या 2 शब्द में आंसर करनी है। It's a very brief section. Dear friends, we've come to an end to the main round of the interview. We have a small segment called as the rapid fire round, where we'll get to know about our guests and celebrities, likes and dislikes. He is Dr. Kirit Kumar Bhatt. He is from Baroda, Gujarat. Am I right, sir? या एब्सोल्युटली। Yes. So, friends, get along with me to share this beautiful journey to get to know the likes and dislikes of our celebrity on the International Fab Talks. Dear sir, एक अच्छा सुंदर सा दिन एक ही शब्द में, एक सुंदर सा। परफेक्ट दिन एक शब्द में। माय बर्थडे। वाओ, दैट्स नाइस। दूसरों का मदद करने करने के बाद में क्या आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक मुस्कुराहट या तो भी एक सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पर? उन एक 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 by seeing satisfaction on their face, my smile is automatic. जी जी, वेरी नाइस। आप शहर में, गांव में या छोटे से टाउन में रहना चाहेंगे सर? Now, obviously I will uh, prefer a village. जी, आपको जब ट्रैवलिंग करनी हो तो आपको लैंड, वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट पसंद है सर? लैंड ज्यादा पसंद है। कौन सा मौसम आपको पसंद अच्छा लगता, कौन सी मौसम? विंटर। अगर केक्स, चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स आपके सामने रख दिए तो आप पहले क्या खाएंगे? आइसक्रीम ओनली। ओनली आइसक्रीम्स? ओनली आइसक्रीम्स। कौन सी फ्लेवर? और सिंपल वेनिला। वैनिला? नो कलर्स, नो चॉकलेट्स, नथिंग। ओह ग्रेट, दैट्स नाइस। सर, आप एक एकेडमिशियन है अभी, एक प्रिंसिपल है, डायरेक्टर साहब भी है, तो आपका फेवरेट टीचर का नाम क्या है, या आपका फेवरेट सर का नाम क्या है सर? माय ही इज पी के प्रजापति, माय स्कूल टीचर। जी पी के प्रजापति।
यस सर, थैंक यू सर। आप, यू आर अ प्रोफेशनल, एन एकेडमिशियन, इसके अलावा क्या आप एक लाइफ स्किल आपने सीख लिया? वो लाइफ स्किल ये है कि आपको पकाना आती है या नहीं आती? नहीं, मैं चाय भी ठीक से नहीं बना सकता हूँ, मुझे डीप टी पीनी पड़ती है। जी 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 जी, ओके सर। वो लाइफ स्किल एक है जो सीखना है हम सबको, तो यस, दैट्स सीखना नाइस। चाहिए। आई यस। एग्री। सर, आर यू एन अर्ली बर्ड और अ नाइट ऑल? सुबह में जल्दी उठते हैं और रात में मैं जल्दी सो आई जाते एम हैं? अर्ली बर्ड ऑलवेज। ऑलवेज अर्ली बर्ड, बढ़िया है सर, दैट्स नाइस। हमको मुश्किल हो जाता बिकॉज आई एम अ नाइट आउल, रात भर जाके पूरा काम शांत रहता, तो आई विल बी नाइट आउल। या मॉर्निंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उठने में। जी। आपको सॉल्टी, स्वीट, थोड़ा सा नमक, मीठा, थोड़ा सा कड़वा, तेज या खट्टा फूड पसंद है? ऑब्वियसली बीइंग अ ब्राह्मण आई प्रेफर स्वीट्स। जी जी जी, दैट्स वेरी नाइस। आपकी सबसे फेवरेट स्वीट कौन सी है सर? मेरी वाइफ के हाथ का बना हुआ कलाकंद, कलाकंद, वाह, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बनाती है। जी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आपने थैंक कलाकंद कह दिया और फिर लाइक आई फील लाइक टू हैव नाउ अ पीस ऑफ। यू। यस। जी जी। डियर सर, जिंदगी जो है, क्या सिर्फ जिंदगी पैसों से ही बनती है, या जिंदगी सिर्फ खुशियां ही है, या ये दोनों मिलाकर जिंदगी बनती है? आपने मुझे शॉर्ट में आंसर देने के लिए कहा है, अदरवाइज आई कुड हैव एलोबरेटेड एंड एक्सप्लेन इट। बट कोई एक चीज जिंदगी बना ही नहीं सकती। हमें इनकम भी चाहिए, हमें हमें रिलेशनशिप भी चाहिए, अदरवाइज हम जी ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, बट फॉर सर्वाइवल वी नीड इनकम ऑल्सो। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हैं, एक्सट्रोवर्ट मानते हैं, या एम्बिवर्ट मानते हैं सर? ना, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोस्पेक्शन करना मुझे, मेरा पैशन भी है। कहीं कुछ चीज गलत होती है तो मैं अपने आप से ज्यादा बात करता हूँ दूसरों से। जी जी। जब आप अकेले होते हैं, कोई फोन, लैपटॉप कुछ भी नहीं है आपके सामने, घर हम्म। वाले भी नहीं है, दोस्त कोई भी नहीं है, अकेले है रूम में, हम्म। कुछ भी नहीं है देखने के लिए, बस चार दीवार है, एक बड़ी हम्म। सी खिड़की है, थोड़ी हम्म। सी सूरज की किरणें आ रहे, बस और कुछ भी नहीं, आगे खिड़की के आगे एक दीवार है, और कुछ भी नहीं देखने के लिए भी। तो हम्म। तब अपने मन के साथ बातें करते, अपने थॉट्स के साथ, विचारों हम्म। के साथ, हम्म। तो आपके विचार आपको कहाँ ले जाते हैं? पास्ट में, प्रेजेंट में, या फ्यूचर नो, में? ये बहुत ही धारदार सवाल कर दिया आपने। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ग्रोथ कैसे लाया जाए लाइफ में। ग्रोथ के बारे में मुझे बहुत ख्याल आते रहते हैं। जैसे सी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ दैट डजंट मीन इंक्रीजिंग मनी। योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर एकेडमिक ग्रोथ, योर फिजिकल ग्रोथ, योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर सोशल नेटवर्क इंक्रीज, समथिंग लाइक। सो मैं वेल्थ क्रिएशन में मानता हूँ, लेकिन फ्रॉम वेरियस डोमेन्स। कि आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए, आपकी सोशल वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, आपकी हेल्थ भी ठीक ठाक चलनी चाहिए, सभी के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छा चले, समथिंग लाइक। ये मेरे दिमाग में ज्यादा चलता रहता है। आपको सोशलाइजिंग अच्छी लगती है, या खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है सर? मैं थोड़ा बैलेंस्ड हूँ इन मामले में। सोशलाइजिंग इसलिए कई बार जरूरी भी हो जाता है, बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर इन 2014 दिसंबर। तो वो मेरी ड्यूटी भी बनती है, लेकिन ड्यूटी से भागना नहीं चाहिए किसी को भी, चाहे सामाजिक जिम्मेदारी हो या ससुराल साइड से हो या अपने साइड से हो। तो ड्यूटी से नहीं भागना चाहिए, लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। जी सर। आप एक थिंकर हैं, या आप बस सोचते हैं या करते हैं, या सोच के करते हैं, लाइक यू नो, थिंकर, डूअर, और बोथ? मैं थिंकर एंड डूअर हूँ, जहाँ तक पॉसिबल है, जी बिकॉज वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस एज पर द पोजीशन एज वेल एज टाइम। जी और राइटिंग मेरा पैशन भी रहा है, तो जी मैं कुछ चीज़ों को लिखता भी रहता हूँ। मोटिवेशनल चीज़ें, आर्टिकल्स वगैरह सब मैं लिखता रहता हूँ। जी जी।
जी सर। आप घर का खाना पसंद करते हैं या बाहर के खाना, या दो भी? ज्यादा ज्यादा घर का पसंद करता हूँ। थोड़ा बाहर का भी? थोड़ा बाहर का खाना पड़ेगा ना, कहीं गए वो सब ड्यूटीज असाइनमेंट्स कोई, तो बाहर का खाना पड़ता है। अदरवाइज मैं खाना तो घर का ज्यादा पसंद करता हूँ। जी। इनफैक्ट ज्यादा भी खा सकते हैं, जब घर का खाना है थोड़ा एक दो निवाला ज्यादा ही खा सकते हैं नहीं, कंपेयर वो टू। बनाती भी अच्छा है ना, वो पंजाबी चाइनीज गुजराती सारी चीजें वो सबसे बढ़िया अच्छा बनाती है घर पे। सो दैट वे आई एम ओके विद दैट। तो बड़े खुश नसीब हैं आप कि भाई यू हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ क्विजीन्स, ऑल या टाइप्स ऑफ रेसिपीज। यस सर। आपको टू व्हीलर अच्छी लगती है या फोर व्हीलर, या चलना पसंद है ऐसे आप? वॉकिंग मेरी सुबह होती है, लेकिन मैं टू व्हीलर तो 2007 से ही मैंने बंद कर दिया। आई यूज्ड टू गो विथ माय कार ओनली, सो आई लव माय कार। जी सर, जी सर। अभी हफ्ते में 7 दिन है, उन 7 दिनों में आपका फेवरेट दिन कौन सी है सर? ऑब्वियसली संडे। आप एवरी एकेडमिशियन, एवरीबॉडी विल से दैट। No, Sunday is the day we live with family. We go for shopping and outside something. यस सर। आपका फेवरेट नंबर? 9. 9। टी या कॉफी? Tea. आपको तोहफा देना अच्छा लगता है या मिल रिसीव करना अच्छी लगती है? नहीं, तोहफा देना भी अच्छा लगता है मुझे। यूजुअली हम लोगों का एक ट्रेडिशन रहता है कि जहाँ बच्चे बच्चे हो तो हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ तोहफे लेके जाते हैं। लेकिन रिसीव करना भी बुरा तो नहीं लगता है, वो भी अच्छा ही लगता है। तो आज हमारे लिए एक कार्यक्रम खत्म होने से पहले हमारे लिए एक छोटी सी तोहफा देकर जाना है आप। बिल्कुल मैडम, जी जी। बिल्कुल। ये छोटी सी गुजारिश है कि हम्म, आप 3 ऐसे शब्द हमें बताएं जो हम्म, हमारी जिंदगी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। लाइक यू सी, देयर आर 3 मैजिकल वर्ड्स। ऐसे कहते हैं कि भाई 3 मैजिकल वर्ड्स है, 3 मैजिकल शब्द हैं, हम्म, जादूगर, जादू वाले शब्द। वो तो प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। प्लीज, बराबर। सॉरी एंड थैंक यू और मैजिकल वर्ड्स, उनको अलग रख के आप, हम लोग हमेशा अपने जो गेस्ट्स आते हैं या सेलिब्रिटीज आते हैं उनसे गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते, यू प्लीज गिव अस 3 एडिशनल वर्ड्स, कि भाई हम इन 3 वर्ड्स पर गौर करके अपनी जिंदगी को सही तरीके से आगे ले जाएं। वो कंपैशन, लव, करेज, इट कुड बी एनीथिंग। नो, मैं उससे थोड़ा हट के बताऊंगा। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड। Read includes reading a good books, motivational books. And madam, we cannot bring motivation in anyone. No motivational speaker can motivate anyone. वेरी They ट्रू। can inspire to motivate. जी। He can inspire to motivate. They cannot motivate. So read, then think, and then proceed. Read, think, and proceed. These are the 3 words which I believe very strongly. रीड, थिंक एंड देन प्रोसीड। Then proceed. सुपर। Proceed means then came into the action. लोग क्या करते हैं कि थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के फिर सीधा एक्शन लेने जाते हैं, देन फेल्यूर कम्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू इक्विप योरसेल्फ। सी, हर चीज में, चाहे वो बिजनेसमैन हो या मैनेजर हो या कोई नौकरी करने वाला, उसको एक एकेडमिक्स पता होना चाहिए, उसकी प्रोफेशन और उसकी जॉब के बारे में। वो एकेडमिक्स तो पता होना चाहिए, इसके बारे में ही शुड हैव अ कंप्लीट थिंकिंग आती है वो नॉलेज के लिए कि एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर, विथ प्रैक्टिकलिटी के साथ। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट हैज टू पे पुट इनटू द एक्शन, ताकि उसको पता चले कि उसकी रियल में आउटकम क्या होगी और किस तरह से मैं ऑप्टिमाइज्ड वे में प्रोसीड करूं। सो दैट इज हाउ these 3 words are useful in my opinion. रीड, think Think and proceed. and Read, proceed. think and proceed. Proceed. Yes. Take action. Proceed is to take action. To take action. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ दोस 3 ब्यूटीफुल वर्ड्स। Every student out there coming from the academic sector, definitely this is what you will give. You know, it has a lot of शक्ति, बहुत शक्ति है इन 3 शब्दों में कि भाई read, think and proceed and your life will be really perfect. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। एंड मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर हुआ तो जस्ट फॉरगिव मी। It's fine. It's fine. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank वेरी you. मच। Thank you, एंड madam. Thank you for calling me here.
on this platform and giving me a chance to interact with you and the other viewers. Thank you. Thank you, sir. And we wish that you come once again and share your thoughts and views on any given topic which students would like, or the colleagues or the people out. Because you are a great speaker, और आप दिल से भी और मन से दोनों को मिलाकर आप बात करते हैं, बस ऐसे ही नहीं, बस मन से ही नहीं या बस दिल से नहीं. You mixing the heart and the mind, and then you're speaking. So you're a great speaker, you're a great motivator, and a great inspirer. Thank you, ma'am. Thank you for consideration. Thank you very much. Thank you, sir. Goodbye. Thank you. Dear friends, with this, we'd like to end the International Fab Talks. Thank you for staying with us. Stay blessed and have a lovely evening. God bless.